But while we are working with SQL, SQL stands for Structured Query Language. In case of SQL, we are not required to specify the complete procedure to perform a task. Just we are required to specify the task which is to be performed. We are not required to specify how the task is to be performed. This will automatically be done by the application, by the software which is taking SQL. Clear students? Yes, sir. जब हम पीएल में काम करते हैं जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, एनी प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम करने के लिए हमें जो भी काम कराना होता है उस काम को कराने के लिए क्या प्रोसीजर होगा, वी हैव टू राइट डाउन द कंप्लीट प्रोसीजर. बट इन केस ऑफ एसक्यूएल वी आर जस्ट रिक्वायर्ड टू गिव द टास्क. एसक्यूएल के केस में हमें केवल टास्क को देना पड़ता है, क्या टास्क हम कराना चाहते हैं. वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म दैट पर्टिकुलर टास्क. उस पर्टिकुलर टास्क को कैसे परफॉर्म कराना है वो परफॉर्म कराने के लिए हमें इंस्ट्रक्शंस देने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. इट मींस इन केस ऑफ एसक्यूएल at a time we can give only one command. It means the simple task which can be get performed only with the help of single command can be get executed with the help of SQL. अगर आप कोई ऐसी टास्क परफॉर्म करा रहे हैं जिसको परफॉर्म कराने के लिए केवल एक कमांड की रिक्वायरमेंट है, तो एक कमांड वो आप एसक्यूएल में देंगे, एसक्यूएल आपकी उस टास्क को परफॉर्म करा देगा. बट इफ यू वांट टू परफॉर्म अ कॉम्प्लेक्स टास्क दैट इज रिक्वायर्ड two or more commands to perform that particular task, that then you cannot work only with SQL. अगर आपको कोई ऐसी कॉम्प्लिकेटेड टास्क परफॉर्म करानी है जिसको परफॉर्म कराने के लिए आपको दो या दो से ज्यादा कमांड्स चाहिए, इट मींस यू हैव टू राइट डाउन अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. आपको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखनी है, यानी कि प्रोसीजर बताना है, पहले ये काम होगा, फिर ये काम होगा, फिर ये काम होगा. इट मींस यू आर स्पेसिफाइंग द प्रोसीजर, एंड इफ यू आर स्पेसिफाइंग द प्रोसीजर देन यू हैव टू वर्क विद प्रोसीजरल लैंग्वेज PL. It means whenever we are working with DBMS and we want to perform simple tasks that can be get executed only with the help of single command, then we can issue SQL command. But whenever we are working with DBMS and we want to perform a complicated task, a complex task that is required two or more commands, then we have to combine SQL with PL, that is known as PL SQL. So DBMS also supports the facility of programming in the form of PL SQL. Therefore, these are the advantage of PL SQL which we have already discussed. It also supports SQL as well as it also supports the facility of PL. Now come to the PL SQL block structure. A PL SQL program is written in the form of block. Basically, there are 4 blocks in PL SQL program. First one is the declare block. As the name represents, this block is used to declare the variables. अगर आप कोई ऐसा PL SQL block बना रहे हैं जिसमें आपको variable की requirement है, तो आप declare block use करेंगे, otherwise आप declare block use नहीं करेंगे. Declare block का syntax होता है declare, then inside declare block you will declare the variables. How we can declare the variables अभी सीखेंगे आगे. Then second block is begin. Begin block basically consists of executable statements. जो भी पर्टिकुलर टास्क आपने परफॉर्म करानी है, उन पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कराने के लिए जो भी कमांड्स आपने लिखनी है, those commands will be written in begin block. Next one is exception block. Exception, as you all know, exceptions are the runtime errors. These statements which you have written in begin block, if they make and generate runtime error, if they make and generate exceptions, then you must be including the exception block. Otherwise, exception block is optional. If you don't want to handle exception handling, then exception block is not required. Last one is end block, which represents end of the PL SQL block. Now, first block is declare block, where we will declare the variables. For variable declaration, syntax will be variable name space data type bracket में size. If you want to initialize the variable at this time of declaration, then you can say variable name data type bracket में size colon equal value. In PL SQL block, for the purpose of assignment, operator is colon equal. Only equal is used for comparison. Now, first of all, we will declare the variables. Variable declare करने के लिए we must be knowing data types. और PL SQL supports all the data types which we have already discussed in SQL. जब हमने create table command पढ़ी थी तो field का data type देने के लिए हमने data types पढ़े थे. PL SQL वो सारे data types support करती है. उसके अलावा PL SQL also supports 3 more data types. First one is Boolean.
बुलियन आप जानते हैं, अगर आपको किसी भी फील्ड में लॉजिकल वैल्यू ट्रू और फॉल्स स्टोर करानी है तो आप उसका डेटा टाइप बुलियन लेंगे. सेकंड वन इज परसेंटाइल टाइप एंड परसेंटाइल रो टाइप. Percentile type and percentile row type we will be discussed later on. Now how we can develop a PL/SQL block, how we can create a PL/SQL program. To create a PL/SQL program, first of all we have to start the Oracle. Therefore I am sharing new screen. How you can start Oracle? Click on start, click on run SQL command line. Now I am changing the screen. Students, are you able to view SQL prompt? Yes, sir. Okay. Yes, sir. You will start the Oracle. Then here you will connect with the database. To connect, username is system and password जो भी आपने रखा है. Now you have got connected with the Oracle. Now you have start Oracle. Now you can perform any task by giving the SQL command over here. Now here we want to create a PL/SQL program. The extension of a PL/SQL program will be .SQL, and to create a PL/SQL program command is ed. ed stands for editor and PL/SQL program. जिस भी नाम से आप PL/SQL program बनाना चाहते हैं, suppose हमने कहा we want to create a PL/SQL program by the name hello. That's why we will say ed hello.sql. As you give this command and you press enter, it will show a message. Cannot find the hello.sql file. Do you want to create a new file? You will say new. क्या स्टूडेंट नोटपैड की स्क्रीन आ रही है? नो सर. नहीं आ रही है. इसको शेयर कर देते नो हैं. सर. इसको शेयर कर देते हैं. ये आपकी अब देखिए अब आ गई है. यस सर. आपने कमांड दी थी hello डॉट फाइल का नाम दिया था hello.sql. तो आप देख रहे हैं hello.sql नेम से नोटपैड में एक नई फाइल बन गई है. यहाँ पे अब आप अपना प्रोग्राम बनाएंगे. प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले आप लिखेंगे डिक्लेयर सेक्शन. डिक्लेयर सेक्शन में वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे अगर आपको किसी वेरिएबल की रिक्वायरमेंट है. अगर वेरिएबल की रिक्वायरमेंट नहीं है तो डिक्लेयर सेक्शन नहीं देंगे, डायरेक्ट आप देंगे बिगिन सेक्शन. सपोज यहाँ पे हम एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं टू डिस्प्ले वेलकम टू PL/SQL. तो हमें आउटपुट डिस्प्ले कराना आना चाहिए. PL/SQL में कोई भी आउटपुट डिस्प्ले कराने के लिए बिल्ट इन प्रोसीजर होता है dbms_output.put_line और सिंगल कोट्स में जो भी मैसेज आप डिस्प्ले कराना चाहते हैं. सपोज आपने कहा यू वांट टू डिस्प्ले वेलकम टू PL/SQL ब्लॉक, सिंगल कोट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन. एक्सेप्शन हैंडलिंग हमें नहीं करानी है तो हमने एक्सेप्शन सेक्शन नहीं दिया और कुछ हमें इस प्रोग्राम से नहीं कराना है. देयरफॉर एंड ऑफ PL/SQL ब्लॉक. PL/SQL ब्लॉक एंड करने के बाद सेमीकोलन लगाएंगे और लास्ट में नेक्स्ट लाइन में स्लैश देंगे. अगर आप स्लैश नहीं देंगे तो आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा. अब आप इस प्रोग्राम को सेव करेंगे. फाइल मेन्यू सेव. अब आप इससे एग्जिट होंगे. फाइल मेन्यू एग्जिट. जैसे ही आप एग्जिट होंगे वापस आप SQL प्रॉम्प्ट पे चलते हैं. शो रहा है स्टूडेंट SQL प्रॉम्प्ट? यस सर. अब हम यहाँ पे इस प्रोग्राम को रन कराएंगे. प्रोग्राम को रन कराने के लिए कमांड होती है @ प्रोग्राम नेम, जिस नाम से आपने प्रोग्राम बनाया है. जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा और जो भी आपके प्रोग्राम का आउटपुट है वो आपको शो हो जाएगा. लेकिन आप देख रहे हैं आपका आउटपुट शो नहीं हो रहा है. हमने आउटपुट डिस्प्ले कराया था वेलकम टू PL/SQL ब्लॉक. यहाँ पर कोई आउटपुट शो नहीं हो रहा है. सिंपल लिखा हुआ आ रहा है PL/SQL प्रोसीजर सक्सेसफुली कंप्लीटेड. इट मींस आवर प्रोग्राम हैज बीन एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली. कोई एरर नहीं आई है. लेकिन आउटपुट क्यों नहीं आ रहा है स्टूडेंट्स? सर सेट सर्वर आउटपुट ऑन नहीं है ना. क्योंकि dbms_output.put_line का आउटपुट डिस्प्ले कराने के लिए हमें सेट सर्वर आउटपुट ऑन करना पड़ेगा. बिल्कुल सही बताया शिवम ने. तो इसको हम ऑन कर देते हैं. सेट सर्वर आउटपुट ऑन. सर्वर आउटपुट में स्पेस नहीं देना है. एंटर प्रेस करेंगे. अब आपकी कमांड का आउटपुट ऑन हो गया है. अब आप उसको रन कराएंगे @hello. जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे आप देख रहे हैं आपका आउटपुट डिस्प्ले हो गया वेलकम टू PL/SQL ब्लॉक. क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर. Now Yes, sir. you are able to create a PL/SQL program. You are able to run a PL/SQL program. Clear students? यस सर. चलिए यस सर. अब दोबारा से स्क्रीन शेयर चेंज करते हैं. वापस अपनी प्रेजेंटेशन पे चलते हैं. शो रही है स्टूडेंट्स प्रेजेंटेशन?
Yes, sir. Yes, चलिए, sir. क्रिएटिंग अ पीएल एसक्यूएल ब्लॉक हमने सीख लिया, रनिंग अ पीएल एसक्यूएल ब्लॉक हमने सीख लिया, डिस्प्लेइंग आउटपुट इन अ पीएल एसक्यूएल ब्लॉक हमने सीख लिया। यहाँ पे इसके 3 सिंटैक्स दिखाए गए हैं। पहला सिंटैक्स है, अगर आपको सिंपल कोई टेक्स्ट डिस्प्ले कराना है, कोई मैसेज डिस्प्ले कराना है, तो आप सिंगल कोट्स में टेक्स्ट लिख देंगे। दिखाता हूं मैं आपको एनोटेशन के थ्रू। ये सिंटैक्स जो फर्स्ट वाला सिंटैक्स है ये होगा अगर आपको सिंपल कोई टेक्स्ट डिस्प्ले कराना है। अगर आप किसी वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो टेक्स्ट की जगह वेरिएबल नेम देंगे, एंड वेरिएबल नेम मस्ट नॉट बी गिवन विद इन सिंगल कोट्स। अगर आप सिंगल कोट्स के अंदर लिखते हैं तो वेरिएबल नेम एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, लेकिन हमें वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करानी है, इसलिए सिंगल कोट्स में नहीं देंगे। अभी आप देख रहे हैं दोनों सिंटैक्स से हम एक बार में एक ही एक्सप्रेशन की वैल्यू डिस्प्ले करा रहे हैं, बट इफ यू वांट टू डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ मोर देन वन एक्सप्रेशंस एट द सेम टाइम, तो आपको मल्टीपल एक्सप्रेशंस को कॉन्कैटिनेट करना पड़ेगा। मल्टीपल एक्सप्रेशंस को कॉन्कैटिनेट करने के लिए यूज करते हैं डबल पाइप सिंबल। एक्सप्रेशन 1 डबल पाइप सिंबल, एक्सप्रेशन 2 डबल पाइप सिंबल, एक्सप्रेशन 3 एंड सो ऑन। तो आउटपुट डिस्प्ले कराना आ गया स्टूडेंट्स? Yes, sir. चलिए, नेक्स्ट आता है गेटिंग इनपुट इन अ पीएल एसक्यूएल ब्लॉक। देखिए, जब भी आप कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो प्रोग्राम में इन एवरी प्रोग्राम you are required to display output and you are required to get input from the user। चाहे वो प्रोग्रामिंग आप किसी पीएल में कर रहे हैं, चाहे वो प्रोग्रामिंग आप पीएल एसक्यूएल में कर रहे हैं, चाहे आप कितना ही छोटे से छोटा प्रोग्राम बना रहे हैं, चाहे आप कितना ही लार्ज प्रोग्राम बना रहे हैं, इन ऑलमोस्ट प्रोग्राम्स you are required to display output and you are required to get input। तो आउटपुट हमने डिस्प्ले कराना सीख लिया, अब हम इनपुट लेना सीख रहे हैं। पीएल एसक्यूएल ब्लॉक में कैसे इनपुट लेते हैं? पीएल एसक्यूएल ब्लॉक में इनपुट लेने के लिए साइन यूज होता है एम्परसैंड। जैसा कि आप देख रहे हैं, सिंटैक्स देखेंगे, वेरिएबल नेम, जिस वेरिएबल में जो यूजर वैल्यू इनपुट करेगा वो स्टोर करानी है, कॉलन इक्वल टू एम्परसैंड प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट का मतलब है मैसेज, जो भी मैसेज आप यूजर को डिस्प्ले कराना चाहते हैं, लेकिन ये मैसेज केवल सिंगल वर्ड का होना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए आपको नेम इनपुट कराना है तो यहाँ पे आप लिखेंगे एम्परसैंड नेम, और ये मैसेज अपने आप बन जाएगा एंटर वैल्यू फॉर नेम। एंटर वैल्यू फॉर ये मैसेज में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है। जैसे हम आपको एक प्रोग्राम बना के दिखाते हैं। मान लीजिए हमें प्रोग्राम बनाना है टू गेट 2 नंबर्स फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्ले देयर सम। यूजर से 2 नंबर इनपुट कराने हैं और उनका सम कराना है, तो हमने कहा ed sm.sql, ये हमारा sum.sql फाइल बन गई। यहां पे हमने कहा सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं, डिक्लेयर, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया ये हमने नंबर टाइप का, देन बी नंबर, देन सम कराना है सी नंबर। ये हमने 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए ABC। नाउ इन बिगिन सेक्शन सबसे पहले हमें इनमें वैल्यू इनपुट करानी है, तो हमने कहा A कॉलन इक्वल टू एम्परसैंड नंबर 1, B कॉलन इक्वल टू एम्परसैंड नंबर 2 एंड C इक्वल टू A प्लस B। अब हमें आउटपुट डिस्प्ले कराना है, हमने कहा dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन। आउटपुट डिस्प्ले कराना चाहते हैं हम सम इज, और उसके आगे इसकी वैल्यू आए, तो 2 एक्सप्रेशन की वैल्यू डिस्प्ले करानी है, तो हमने इसको कॉन्कैटिनेट कर दिया डबल पाइप सिंबल से, देन एंड, देन स्लैश। सेव करा लिया, एग्जिट करा लिया, वापस कमांड लाइन पे चलते हैं, यहां से प्रोग्राम रन कराते हैं। प्रोग्राम रन कराने के लिए हमने कहा @sm। देखिए प्रोग्राम रन हो गया। ये आपसे पूछ रहा है एंटर वैल्यू फॉर नंबर 1 से, हमने कहा 20, एंटर वैल्यू फॉर नंबर 2 हमने कहा 30। तो देखिए इसमें एरर आ गई, एरर एट लाइन 8। देख रहे हैं स्टूडेंट्स, एरर आ रही है? हेलो सर, आ रही है। समझ आ गया क्यों आ रही है एरर? ये नहीं सर। स्टूडेंट बता सकते हैं एरर क्यों आ रही है? Yes, sir. क्यों आ रही है? सर कॉलन नहीं लगाया ना इक्वल हाँ, के बराबर हमने में। असाइनमेंट कराया और असाइनमेंट के लिए कॉलन यूज करते हैं, तो इसको फिर हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो ed sum.sql मैं मॉडिफाई कर देता हूं, आपको दिखा नहीं रहा हूं, शेयर नहीं कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि वापस दोबारा से आउटपुट ही देखना है।
अब देखिएगा, आप इसको फिर से रन कराते हैं। @SM एंटर वैल्यू फॉर नंबर 1, एंटर वैल्यू फॉर नंबर 2। तो देखिए सम आ गया, सम इज 40। क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। चलिए, यस सर। ओके, यस सर। चलिए वापस चलते हैं अपने स्क्रीन पे। तो ये हमारा था आउटपुट कैसे लेते हैं। ये प्रोग्राम मैंने आपको बना के दिखा दिया है। ये कुछ प्रोग्राम्स आप लोगों को बना के देखने हैं, आप लोगों ने पहले भी बनाए हैं स्टूडेंट्स। यस सर। सर जिन्होंने नहीं बनाए हैं, ये आपका असाइनमेंट है, ये सारे प्रोग्राम्स बना के देख लीजिएगा। नाउ कम टू दी कंट्रोल स्टेटमेंट्स। Whenever we are talking about procedural language, without control statements, procedural language is nothing. Control statements are the power of the procedural language, or in other words, we can say that control statements are the main features of procedural language. As you all know, control statements are the statements which are used to control the flow of a program. बाय डिफॉल्ट आपने जो प्रोग्राम बनाया है, जब आप उसे रन कराते हैं तो पहला प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन फर्स्ट स्टेटमेंट से शुरू होता है, उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है एंड सो ऑन, और लास्ट स्टेटमेंट के बाद आप प्रोग्राम से बाहर आ जाते हैं। लेकिन अगर आप अपने प्रोग्राम को उसी सीक्वेंस में एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते हैं जिस सीक्वेंस में आपने लिखा है, तो उसके लिए आपको कंट्रोल स्टेटमेंट्स यूज करने पड़ते हैं। एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट्स 3 टाइप ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट्स। फर्स्ट वन इज कंडीशनल स्टेटमेंट्स, सेकंड वन इज रिपीटिशन स्टेटमेंट्स एंड थर्ड वन इज जंप स्टेटमेंट्स। कंडीशनल स्टेटमेंट्स अगर हम C++, जावा की बात करें तो उसमें होता था if else, if else if एंड स्विच केस। लेकिन PL SQL में कंडीशनल स्टेटमेंट होता है if then else, if then else if, स्विच केस जैसा कुछ नहीं होता है। फर्स्ट आता है if then else जैसा लिखा हुआ है वैसे ही वर्क करेगा। If you want to evaluate only single condition, you can work with if। सिंटैक्स होगा if ब्रैकेट में कंडीशन, then statements you want to execute, else statements you want to execute, and if। जैसा कि आप C++, जावा में इफ फॉर लूप यूज करने के लिए, ब्लॉक बनाने के लिए यूज करते थे कर्ली ब्रैकेट्स। यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स यूज नहीं होता है। यहाँ पर इफ आपने जहां लिखा है वहां से इफ स्टार्ट हो रहा है, और इसको खत्म करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा एंड इफ। जब तक आप एंड इफ नहीं लिखेंगे ये चलता रहेगा। एल्स डालना है तो एल्स भी डाल सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? सुन पा रहे हैं स्टूडेंट्स? यस सर। क्लियर है इफ स्टेटमेंट? यस सर। चलिए, देन इफ की हेल्प से हम केवल सिंगल कंडीशन चेक करा सकते हैं। अभी मैं आपको एक एक प्रोग्राम बना के दिखा दूंगा। पहले इसका सेकंड सिंटैक्स समझ लेते हैं। इफ देन एल्स इफ। If you want to evaluate more than one conditions, then you have to work with if then else if, जैसे C++ जावा में होता था, बस थोड़ा सा सिंटैक्स डिफरेंट है। if ब्रैकेट में कंडीशन, then statements you want to execute। उसके बाद C++ जावा में लिखते थे else if, और else और if के बीच में स्पेस होता था। लेकिन PL SQL ब्लॉक में else और if के बीच में स्पेस नहीं होता है। PL SQL ब्लॉक में else और if को कंबाइन करके लिखा जाता है, इसलिए else का E ट्रंकेट हो जाता है, और else if की स्पेलिंग हम लिखते हैं ELSIF। कंडीशन देन स्टेटमेंट यू वांट टू एग्जीक्यूट। ऐसे जितनी भी कंडीशंस आपको इवैल्यूएट करनी है, you will give that many else if statements। लास्ट में else अगर देना चाहते हैं तो देंगे, then closing of end if। तो ये थे हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ठीक है, एक प्रोग्राम बना के देखते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। प्रोग्राम है हमारा to get 2 numbers from the user, display larger one। यूजर से 2 नंबर इनपुट कराने हैं और लार्जर नंबर डिस्प्ले कराना है, तो हमने प्रोग्राम को नाम दे दिया ed larger। ठीक है, बना देते हैं प्रोग्राम। अभी मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ प्रोग्राम की। ये प्रोग्राम बनाते हैं। एज यू ऑल नो, सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हमने लार्जर नंबर निकालना है, तो हमने 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर लेने हैं। पहला नंबर ले लिया ए, वेरिएबल ले लिया ए, दूसरा वेरिएबल ले लिया हमने बी, तीसरा वेरिएबल ले लिया हमने सी। अब देखिए, अगर आप इनपुट जब आप वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं तभी आप उनको वैल्यू असाइन करना चाहते हैं, तो वैल्यू आप यहाँ पर भी असाइन कर सकते हैं। लेकिन असाइनमेंट में हमें तो यूजर से इनपुट करानी है, तो आप यूजर से यहाँ भी इनपुट करा सकते हैं। एम्परसैंड और प्रॉम्प्ट दे दीजिएगा, जो भी प्रॉम्प्ट आप देना चाहते हैं। बी में भी आपको यूजर से वैल्यू इनपुट करानी है, कोलन इक्वल एम्परसैंड नंबर 2। आप बिगिन में भी दे सकते हैं और इनिशियलाइजेशन आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। देन बिगिन, ए में हमारे पास फर्स्ट नंबर आ गया, बी में हमारे पास सेकंड नंबर आ गया। हमें लार्जर नंबर निकालना है, तो हमने कहा इफ ए ग्रेटर देन बी, देन कौन सा नंबर लार्जर हुआ?
ए, तो हमने सी में ए डाल दिया, सी कॉलन इक्वल टू ए, एल्स हमने कहा सी कॉलन इक्वल टू बी। अगर ए बड़ा नहीं है तो ऑब्वियसली बी बड़ा होगा। देन एंड इफ, उसके बाद हमें आउटपुट डिस्प्ले कराना है। आउटपुट डिस्प्ले कराने के लिए लिखेंगे dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन लार्जर नंबर इज C and then slash। चेंज कर देते हैं स्क्रीन शेयर। अब देखिए रन कराते हैं @ लार्जर। एंटर नंबर 1 हमने डाला 20, एंटर नंबर 2 हमने डाला 30। तो देखिए एक एरर आ गई है। क्या एरर आई है? dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन मस्ट बी डिक्लेयर्ड। यहाँ पे आप देख रहे हैं आउटपुट की स्पेलिंग गलत हो गई है, इसलिए एरर आ रही है। सही कर देते हैं हम इसको, ed स्पेस लार्जर, आउटपुट की स्पेलिंग होगी OUTPUT। दोबारा से रन कराते हैं स्टूडेंट्स। एंटर नंबर 1, एंटर नंबर 2, देखिए आउटपुट आ गया लार्जर नंबर इज 3। क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम बनाते हैं। अगर हमें ये था सिंगल कंडीशन चेक करने के लिए, अगर आपको मल्टीपल कंडीशंस इवैल्यूएट करनी है तो ऐसे ही मल्टीपल कंडीशंस इवैल्यूएट करा लेंगे एल्स इफ लगा के। बताइए स्टूडेंट्स, बना के दिखाएं। एल्स इफ का प्रोग्राम बना के दिखाएं। नो सर। नहीं सर, कोई जरूरत नहीं है। नो सर, हो जाएगा सर, ये तो हो जाएगा। चलिए ये बाकी प्रोग्राम बना के देखिएगा। स्क्रीन शेयर कर देता हूं मैं आप लोगों को। Now, next is we are discussing control statements. Control statement first था conditional statement, second था repetition statements. Repetition statements are the statements which are used to execute repeatedly till some specific given condition is satisfied. अगर आपने स्टेटमेंट्स को लिखा तो एक बार है, लेकिन आप उन्हें एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं मल्टीपल टाइम्स, मोर देन 1 टाइम्स, मींस यू वांट टू रिपीट देम repeatedly, you want to execute them repeatedly, तो उसके लिए आपको यूज करने पड़ेंगे repetition statements. Basically C++ and Java supports 3 repetition statements: while loop, for loop and do while loop. PL SQL also supports 3 repetition statements. First one is while loop, second one is for loop, third one is loop. While loop is exactly same as while loop of C++ and Java. While loop is used to execute the statements repeatedly till some specific given condition is satisfied. लूप के स्टेटमेंट तब तक एग्जीक्यूट होंगे जब तक आपकी कंडीशन सेटिस्फाई है, इसलिए जब भी आप व्हाइल लूप यूज करेंगे तो व्हाइल लूप के साथ आपको कंडीशन देनी होगी। इसलिए सिंटैक्स होता है व्हाइल ब्रैकेट में कंडीशन देन लूप। लूप इज द कीवर्ड। जब तक आप लूप कीवर्ड नहीं लगाएंगे ये व्हाइल लूप वर्क नहीं करेगा। स्टेटमेंट्स यू वांट टू एग्जीक्यूट देन एंड लूप। जैसे ही आप एंड लूप पे क्लिक करेंगे इसका मतलब है आपका लूप कंप्लीट हो गया, आपका लूप ओवर हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। चलिए प्रोग्राम बना के दिखाएं इसका, या पहले दिखाया था, जरूरत नहीं है बताइए। सर नहीं है। क्लियर? अगर किसी स्टूडेंट को लगता है तो बोल दीजिएगा, हम बना के दिखा देंगे, 5 मिनट लगेगी। किसी स्टूडेंट को? हाँ जी तो दिखा दो। दिखा दें बना के। चलिए बना देते हैं। कमांड लाइन पे वापस जाना पड़ेगा। देन सपोज वी आर डेवलपिंग अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले काउंटिंग 1 to 100। हमें 1 से 100 तक की काउंटिंग प्रिंट करानी है, तो हमने कहा ed cnt, ये हमारी बन गई cnt.sql फाइल। अब यहाँ पे प्रोग्राम टाइप करते हैं, डिक्लेयर, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया n नंबर, 1 से काउंटिंग डिस्प्ले करानी है इसलिए इसकी इनिशियल वैल्यू हमने कर दी 1। बिगिन, लूप चला दें, while n लेस देन इक्वल टू 100 लूप dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन
n, then n plus plus, then end loop, then end। अब इसको रन कराते हैं। @CNT, तो देखिए इसमें एरर आ गई है, एनकाउंटर्ड द सिंबल प्लस प्लस व्हेन एक्सपेक्टिंग वन ऑफ द फॉलोइंग। प्लस प्लस ऑपरेटर आपने देखा था इसमें यूज नहीं होता है, तो इसलिए वहां पे हम n = n+1 लगा देते हैं। अब इसको रन कराते हैं। ये देखिए 1 से लेके 100 तक की आपकी काउंटिंग प्रिंट हो गई। क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट लूप सर होता एक बार है प्रोग्राम वाला डिस्प्ले दिखाना सर। प्रोग्राम सर रन करा के यहाँ दिखाऊं? पे कोडिंग की वाली डिस्प्ले दिखाना सर एक बार। कोडिंग देखनी है। हाँ सर, हाँ सर कोडिंग देखनी है एक बार। ED_CNT, ये प्रोग्राम की कोडिंग आ गई है। मैं शेयर चेंज कर रहा हूं, ये देखिएगा, दिस इज द प्रोग्राम कोड। क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है सर, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो इसमें तो पूछ लीजिएगा। नो सर। चलिए अब दूसरा प्रोग्राम, अब देखिए नेक्स्ट आता है लूप एंड लूप। देखिए जो हमारा वाइल लूप था, वाइल लूप में हमें कंडीशन देनी कंपलसरी है, और वाइल लूप तभी तक एग्जीक्यूट होगा जब तक वो कंडीशन ट्रू है। जैसे ही वो कंडीशन फॉल्स होती है वाइल लूप टर्मिनेट हो जाएगा। बट समटाइम्स वी डोंट नो अ लूप इज टू बी एग्जीक्यूटेड हाउ मेनी टाइम्स। इट मींस वी आर रिक्वायर्ड टू डेवलप एन इनफाइनाइट लूप। हम एक इनफाइनाइट लूप बनाना चाहते हैं। इनफाइनाइट लूप का मतलब है लूप अपने आप से टर्मिनेट नहीं होगा, लूप एक बार चल गया तो वो एग्जीक्यूट होता रहेगा। फिर उस लूप को टर्मिनेट कराने के लिए हमें अलग से कंडीशन देनी पड़ेगी, कैसे टर्मिनेट, कब टर्मिनेट होगा। तो अगर आप ऐसा कोई इनफाइनाइट लूप बनाना चाहते हैं जिस लूप में आपको पहले से, अगर आपको पहले से पता नहीं है लूप कितनी बार चलाना है, तो आपको इनफाइनाइट लूप बनाना पड़ता है। और इनफाइनाइट लूप बनाने के लिए सिंटैक्स होता है लूप स्टेटमेंट्स यू वांट टू एग्जीक्यूट एंड लूप। अब आप सोच रहे होंगे अगर हमने इनफाइनाइट लूप बना दिया तो जैसे ही प्रोग्राम को रन करेंगे लूप चलता रहेगा, यानी कि प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट होता रहेगा। क्लियर स्टूडेंट? तो फिर लूप से बाहर कैसे आएंगे? तो लूप से बाहर आने के लिए यूज करते हैं जंप स्टेटमेंट्स, जैसा आपने C++ और जावा में पढ़े थे। C++ और जावा में जंप स्टेटमेंट्स होते थे ब्रेक, कंटिन्यू एंड गो टू। लेकिन PL SQL ब्लॉक में केवल एक ही जंप स्टेटमेंट होता है जिसका नाम होता है एग्जिट। एग्जिट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू टर्मिनेट अ लूप। जब भी आप किसी भी लूप को टर्मिनेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप एग्जिट स्टेटमेंट यूज करते हैं। एक सिंटैक्स है एग्जिट का, एग्जिट सेमीकोलन, यानी कि जैसे ही एग्जिट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा आप लूप से बाहर आ जाएंगे। लेकिन अगर आप जैसे ही एग्जिट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है तब लूप से बाहर नहीं आना चाहते हैं, कंडीशन के बेस पर लूप से बाहर आना चाहते हैं, तो आप सिंटैक्स यूज करते हैं एग्जिट व्हेन कंडीशन। अब आप लूप से तभी बाहर आएंगे जब आपकी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, अदरवाइज नहीं आएंगे। जैसा कि मैं आप लोगों को दिखाता हूं, एक बार एक प्रोग्राम बना लेते हैं, उसमें मैं आपको चेक कराता हूं। अभी जो हमने CNT वाला प्रोग्राम बनाया था, इस CNT वाले प्रोग्राम में हम इनफाइनाइट लूप लगा देते हैं। हमने कोई कंडीशन नहीं दी, हमने कहा लूप स्टेटमेंट्स यू वांट टू एग्जीक्यूट एंड लूप। क्लियर स्टूडेंट्स? दिखाई दे रहा है प्रोग्राम? यस सर। दे रहा। चलिए वापस कमांड प्रॉम्प्ट पे चलते हैं, SQL कमांड पे। यहां से इस प्रोग्राम को रन कराते हैं @CNT। देख रहे हैं आपका प्रोग्राम रन होते जा रहा है, देख रहे हैं आउटपुट? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आउटपुट डिस्प्ले होता जा रहा है। ठीक है, बाहर ही नहीं आ रहे हैं आप इससे। 100। क्लियर? यस सर। अब इसको ब्रेक कर देते हैं। ठीक है,
इसको ब्रेक किया तो हम एसक्यूएल से डिस्कनेक्ट हो गए हैं। अब इसको वापस मैं कनेक्ट कर रहा हूं। वापस मैंने कनेक्ट कर दिया, देखिए अब ठीक है। तो इसको मॉडिफाई कर लें, EDCNT। अब यहां पर हम चाहते हैं लूप हमारा ब्रेक हो जाए, 100 के बाद लूप ब्रेक हो जाए। क्लियर स्टूडेंट्स? तो 100 के बाद लूप को ब्रेक कराने के लिए क्या करें, चेक कराएं। यहां पर अगर हम केवल एग्जिट दे देते हैं तो पहली बार में ही एग्जिट हो जाएगा, केवल क्या प्रिंट करेगा। नाउ व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम? सर डिस्प्ले नहीं आ रही, स्क्रीन शो नहीं हो रही है। स्क्रीन शो नहीं हो रही है, एक मिनट। नो सर, एक मिनट देखिए, अब शो हो रही है। सर आ गई। यस सर। अब बताइए व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम? 1 ओनली 1, क्योंकि जैसे ही 1 प्रिंट करेगा, 1 प्रिंट करने के पहले dbms_output.put लाइन एग्जीक्यूट होगा, ये 1 प्रिंट करेगा, फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, एग्जिट एग्जीक्यूट होगा और हम लूप से टर्मिनेट हो जाएंगे। अगर आपको यहां टर्मिनेट नहीं होना है तो आपने कहा एग्जिट व्हेन, यहां पर आप कंडीशन दे दें n = 100। 100 प्रिंट करेगा, 100 प्रिंट करने के बाद n की वैल्यू चेक करेगा, 100 हो गई है तो लूप से क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। रन करा के देखते हैं। यस सर। रन कराते हैं। देखिए @CNT अच्छा वो ऑन नहीं किया था, दोबारा स्टार्ट किया है क्योंकि मैंने सेट सर्वर आउटपुट ऑन @CNT। तो आप देखिए 1 से 100 तक आया, 100 के बाद लूप से टर्मिनेट हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। नेक्स्ट लूप आता है फोर लूप। शो हो रही है स्टूडेंट स्क्रीन? यस सर। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा फोर लूप।